लगातार तलाश रही है। कल हाईकोर्ट ने उनको जमानत देने से इनकार किया था, उसके बाद सीबीआई की टीम और फिर ईडी की टीम पहुंची थी पी चिदम्बरम के घर, लेकिन उसके बाद से लगातार पी चिदम्बरम को ढूंढा जा रहा था, सामने नहीं आ रहे थे पी चिदम्बरम। अब खबर यह है कि वो कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लुकआउट नोटिस तक जारी कर दिया गया था पी चिदम्बरम के खिलाफ, लेकिन पी चिदम्बरम कहां हैं इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। और अब पी चिदम्बरम इस वक्त कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है जहां पर कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से होने जा रही है कुछ ही देर में, जिसमें पी चिदम्बरम को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में पी चिदम्बरम जिनको कल से ढूंढ रही है सीबीआई और ईडी की टीम, अब जाकर वो सामने आए हैं। 24 घंटे के बाद पी चिदम्बरम की ये झलक देखने को मिली है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि बड़ा मुस्कुराते हुए प्रवेश किया है पी चिदम्बरम ने। कोशिश उन्होंने की थी सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेने की, लेकिन वो जो उनकी अर्जी थी वो मेंशन नहीं हो पाई सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर परसों सुनवाई होनी है। लेकिन फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहे हैं चिदम्बरम। Thanks, sir. Huh? I don't have to tell them, just rise. No, he's taking question. Just rise. तो बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू होने जा रही है। पी चिदम्बरम जिनको पिछले 24 घंटे से सीबीआई ढूंढ रही थी, जिनको ईडी ढूंढ रही थी, वो अब खुद सामने आ गए हैं। रजत राकेश टंडन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत, कल से ढूंढ रहे थे पी चिदम्बरम को, उनके घर पहुंची सीबीआई ईडी की टीम, लेकिन अब जाकर सामने आए हैं वो 24 से 26 घंटे हो गए। I believe that the foundation of a democracy is liberty. The most precious article of the Constitution of India is Article 21, that guarantees life and liberty. If I am asked to choose between life and liberty, I shall unhesitatingly choose liberty. Why are the years up to 1947 called the years of freedom struggle? Because to win freedom, we must struggle. To preserve freedom too, we must struggle. In the last 24 hours, much has happened that has caused concern to some and confusion. To preserve freedom too, we must struggle. In the last 24 hours, much has happened that has caused concern to some and confusion to many. My statement today is to dispel that concern and confusion. In the INX media case, I have not been accused of any offense, nor has anyone else, including any member of my family, been accused of any offense. In fact, there is no charge sheet filed by either the CBI or the ED before a competent court. Moreover, the FIR recorded by the CBI does not impute to me any wrongdoing. Yet there is a widespread impression that grave offences have been committed and my son and I have committed those offences. Nothing can be further from the truth. These are lies spread by pathological liars. When I was summoned by the CBI and then the ED to appear for questioning, I naturally sought interim protection against arrest from the competent court. I was granted interim protection by orders of the High Court dated 31st May 2018 and 25th July 2018. I have enjoyed the interim protection for the last 13 to 15 months. The matters were finally heard on 25th January 2019 and judgment reserved. Now
after 7 months, yesterday, the High Court was pleased to dismiss the pre-arrest bail applications. My lawyers, who are also my dear friends and who are present here, advised me to move the Supreme Court. On my behalf, they did so yesterday evening and today. They appealed repeatedly to the Honorable Supreme Court to list the appeals for hearing urgently and in the meanwhile grant me interim protection. While my lawyers, all senior counsel, were moving the Supreme Court, other lawyers and I worked through the night last night to prepare the papers. We completed the task only this morning and immediately filed the appeals in the Supreme Court. I was working alongside my lawyers the whole of last night. Today, throughout the day, I was with my lawyers following the proceedings in the Supreme Court. I was aghast that I was accused of hiding from the law. On the contrary, I was seeking the protection of the law. I was accused of running away from justice. On the contrary, I was engaged in the pursuit of justice. My lawyers have told me that despite their impassioned pleas, the cases were not listed for hearing today, nor will they be listed tomorrow, but will be listed only on Friday. I bow down to the orders of the Honorable Supreme Court. Between now and Friday, I shall walk with a clear conscience and my head held high. I shall respect the law, even if it is applied with an unequal hand by the investigating agencies. In the name of freedom, I can only hope and pray that the investigating agencies will also respect the law. In the present circumstances, respect for the law can mean only one thing: await the decision of the Honorable Supreme Court on Friday. Some days ago, when I spoke in Parliament, I had said that every judge in this country will uphold the liberty of a citizen. I had said that the collective conscience and the institutional memory of the court as a venerable institution will guide all judges of the country. As much as I believe in liberty, I also believe in the wisdom of our judges. So, friends, until Friday and beyond, let us hope that the lamp of liberty will shine bright and illuminate the whole country. Thank you very much. No questions. No questions are we taking. We're not taking any questions. पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त से अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं कहीं भागा नहीं था, बल्कि मैं सिर्फ अपने जो कागजात हैं, कानूनी कागजात, उनको मैं तैयार कर रहा था। साथ ही साथ पी चिदंबरम ने यह भी कहा कि मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है और मैंने और मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया। उन्होंने खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश की है, जो छोटा सा संबोधन था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और कहा कि मैं जांच एजेंसियों का जो भी सहयोग होगा पूरा सहयोग मैं करूंगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक तरह से सवाल भी उठाया जांच एजेंसियों पर कि जांच एजेंसियां भी और इस बीच एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि सीबीआई की टीम कांग्रेस दफ्तर रवाना हो गई है पी चिदंबरम को गिरफ्तार करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कुछ मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की पी चिदंबरम ने कांग्रेस दफ्तर से, और अब खबर यह है कि सीबीआई की टीम रवाना हो गई है कांग्रेस दफ्तर, जहां पर पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को पूरी तरह से पाक साफ दिखाने की कोशिश की है पी चिदंबरम ने। उन्होंने कहा कि आईएनएक्स मीडिया का जो केस है उसमें मैं आरोपी नहीं हूं, मैं और मेरा बेटा हम दोनों बेगुनाह हैं। लेकिन खबर यह है कि अब कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है पी चिदंबरम की। श्रेया चैटर्जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्रेया, क्या खबर है? अभी सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है चिदंबरम को? देखिए, लीगली सीबीआई बिल्कुल गिरफ्तार कर सकते हैं पी चिदंबरम को। उनके अगर सूत्रों से माना जाए तो एक टीम भी निकल चुकी है
शायद सीबीआई की टीम किसी भी वक्त एआईसीसी ऑफिस पहुंच सकती है। जैसा कि हम देख रहे हैं, पी चिदम्बरम लीगल रेमेडीज के बारे में बात कर रहे हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको उस दिन तक मौका दिया जाएगा। अब सीबीआई के ऊपर है कि वो इनको आज अरेस्ट करेंगे या नहीं, लेकिन सूत्र के अनुसार एक टीम सीबीआई हेडक्वार्टर से निकल चुकी है। अच्छा, लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मिला हुआ है, दिल से उनके साथ है, दिमाग से उनके साथ है। हम उनको उनकी इज्जत करते हैं और उनको अपनी पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी का एक नेता मानते हैं और हम मानते हैं कि देश की उन्होंने बहुत बड़ी सेवाएं की हैं और हम सब उन पर उनके कृतज्ञ हैं और हम ये मानते हैं कि आज जो हुआ है उनके साथ, जो हो रहा है उनके साथ, एक बहुत बड़े दुख का विषय है। सीबीआई की टीम यहाँ पे आती है, सीबीआई की टीम रवाना हो गई यहाँ कांग्रेस ऑफिस, क्या आप लोग का रास्ता? क्या सीबीआई की टीम कांग्रेस ऑफिस आ रही है, ये हम लोग को सूचना मिली। कांग्रेस ऑफिस में तो बहुत लोग आते हैं, सभी का स्वागत होता है। चिदम्बरम साहब को जिस तरह से समन दिया था तो अरेस्ट करने के लिए, देखिए उनको जो कहना था उन्होंने आज कहा है। मैं मानता हूं कि इस स्थिति में, जिस कंडीशन में आज ये प्रेस वार्ता हुई है, इसमें कितना अच्छा कोई बोल सकता है, आज उन्होंने बोलकर आपको दिखाया। आपने कोई बात रखी है सर, लेकिन सर यहाँ पर अगर आप बोलो ना यार, मुझे नहीं पता। कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आपने बुलाया है। Media details from the ED shows that he did, the finance minister tried to favor his son. What do you have to say, sir? We're absolutely convinced that there is no reasonable ground for any allegation. All these allegations are wild, all these allegations are unwarranted, and will come to grief as and when courts will hear these matters. The ED will be coming over here. CBI and the agents are coming at the Congress headquarters, sir. What do you make of it, sir? I'm very surprised it took this so long. तो सलमान खुर्शीद पूरी तरह से डिफेंड करते हुए यहां पर दिखे हैं पी चिदम्बरम को। उन्होंने कहा कि जो बात उन्होंने कहनी थी वो कह दी है पूरी तरह से। बाकी जो सरकार और सीबीआई है, जिनको जो अपना काम करना है वो अपना काम करेंगे। खबर यह है कि सीबीआई की टीम रवाना हो चुकी है कांग्रेस दफ्तर के लिए और हो सकता है कि पी चिदम्बरम को सीबीआई की टीम गिरफ्तार कर ले। किसी भी वक्त पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी हो सकती है। अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पी चिदम्बरम ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने और मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया है और आईएनएक्स मामले में मैं आरोपी नहीं हूं। उन्होंने ये कहा कि मैं इस दौरान लगातार कागज तैयार कर रहा था, हमने पूरी रात बैठकर कागज तैयार किए, कानूनी कागजात जो है उसको तैयार किए, इंसाफ की तैयारी में कर रहा था। साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि इस दौरान दो तरह की चीजें मैंने देखी, एक कंसर्न और एक कंफ्यूजन। यानी कि कुछ लोग थे जो मेरे लिए कंसर्न थे, यानी कि मेरे लिए चिंतित थे, और कुछ लोग थे जो कंफ्यूजन की स्थिति में थे, भ्रम की स्थिति में थे। तो मैं लोगों की आपको बता दें कि जिस वक्त पी चिदम्बरम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैरवी के लिए जो उनके साथी थे, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, वो पूरी जो ब्रिगेड थी वो साथ में उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रही थी, जो कि आज पूरे दिन सुप्रीम कोर्ट में इस बात का प्रयास करती रही कि चिदम्बरम की जो याचिका है वो लिस्ट हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। पूरे दिन कांग्रेस के नेताओं ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने और कपिल सिब्बल ने प्रयास किया। वो इस दौरान भी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी चिदम्बरम के साथ मौजूद रहे थे और इस बात का जिक्र चिदम्बरम कर भी रहे थे। और रोहित विश्वकर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर जुड़ गए हैं फोन पर। रोहित, अभी जो सिचुएशन है वो ये इशारा कर रही है कि किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं पी चिदम्बरम, क्योंकि सीबीआई की टीम निकल चुकी है उनको गिरफ्तार करने के लिए, ऐसी खबर है। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ जो हलचल हो रही है इस वक्त, हलचल ये हो रही है कि किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा कौन सी कार अंदर आ रही, कौन सी कार बाहर जा रही, किसमें कौन निकल रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरों में हमने देखा काले रंग की कार निकली, उस कार में शायद चिदम्बरम थे जो निकल गए वापस, यानी कांग्रेस दफ्तर से फिर वो निकल गए। 6 मिनट तक करीब चिदम्बरम ने अपना बयान पढ़ा, 10 मिनट तक चिदम्बरम कांग्रेस दफ्तर में रुके रहे
और उसके बाद अपना बयान पढ़ के देखिए, तस्वीरें हम फिर दिखाएंगे। ये तस्वीरें जो आ रही है आप देख रहे हैं, इस वक्त चिदम्बरम की गाड़ी है जो निकल गई वहां से। यानी एक तरफ सीबीआई की टीम पहुंच रही कांग्रेस दफ्तर में और दूसरी तरफ चिदम्बरम वहां से अपना बयान देकर निकल रहे हैं। ये एक तरीके से लुका छुपी का जो खेल चल रहा था वो अब अपने एक नए क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ चुका है। सबसे बड़ी चीज ये कि चिदम्बरम ने अपने आप को ये दिखाते हुए कि मैं कहीं डरा नहीं हूं, छुपा नहीं हूं, गायब नहीं हुआ, अंडरग्राउंड नहीं हुआ, ये साबित करने के लिए अपने आप को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस ला के रखे और उनके साथ पूरी कांग्रेस की लाभ लश्कर की पूरी जो वकीलों की सबसे बड़े टीम है वो मौजूद थी। आपने देखा होगा स्क्रीन पर किस तरीके से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और साथ में जितने उनके दिग्गज वकील थे वो सारे, सलमान खुर्शीद, खुद चिदम्बरम वकील हैं, ये सारे लोग एक साथ बैठे थे। सारी टीम मिलकर आज अपना पेपर तैयार करती रही थी। इस वक्त सबसे बड़ी जो खबर आ सकती है वो ये कि चिदम्बरम के पीछे पीछे ईडी की टीम और सीबीआई की टीम दोनों एक साथ आए। कुल 9 नेताओं ने कांग्रेस के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चिदम्बरम के साथ की और 27 घंटे बाद चिदम्बरम यहां दिखाई दिए। अब देखना यह होगा कि कितने देर बाद उनके पीछे टीम वहां उनके पीछे पहुंचती है, क्योंकि आखिरी बार जब उन्हें देखा गया था इससे पहले 27 घंटे पहले तो सुप्रीम कोर्ट से निकलते वक्त देखा गया था। उसके बाद से चिदम्बरम दिखाई नहीं दिए थे। बिल्कुल रोहित, क्योंकि 26-27 घंटे बाद चिदम्बरम सामने आए और जाहिर तौर पर जिस तरह से चिदम्बरम बता भी रहे थे ये 26-27 घंटे उनके बड़े टेंशन में गुजरे होंगे, लेकिन आज जिस तरीके से अभी उन्होंने एंट्री ली हंसते हुए बड़ा सहज दिखाने की कोशिश कर रहे थे और पूरी तरह से खुद को पाक साफ बताया उन्होंने इस पूरे मैटर में। बिल्कुल, इस वक्त जो अभी खबर आ रही कांग्रेस की एक सीबीआई टीम जो है कांग्रेस दफ्तर शायद पहुंच चुकी है, इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस वक्त वहां पर अगर पहुंचती है टीम तो वो खाली हाथ रहेगी क्योंकि वहां चिदम्बरम निकल चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद हमारे पास और हमारे संवाददाता जुड़ेंगे जो बताएंगे कि क्या इसमें अपडेट आने वाला है। ठीक है, रोहित मनोहर केसरी मेरे साथ जुड़ गए, शायद कुछ अपडेट है उनके पास, मैं उनसे जरा अपडेट ले लेता हूं इस वक्त। मनोहर, कभी आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है? देखिए, कांग्रेस ऑफिस में अभी कुछ देर पहले ही यहां से चिदम्बरम निकल चुके हैं और ये भी खबर चल रही है कि यहां पर सीबीआई की टीम अब कुछ ही मिनट में पहुंचने वाली है, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा क्योंकि चिदम्बरम की गाड़ी अभी कुछ वापस लौटता हूं, लेकिन इस वक्त की तस्वीरें आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं चिदम्बरम के समर्थन में और सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जैसा कि मनोहर ने बताया पी चिदम्बरम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो फटाफट अपनी कार में बैठकर कांग्रेस दफ्तर से निकल गए हैं। वो कहां गए हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन खबर यह है कि सीबीआई की एक टीम अब से कुछ देर में कांग्रेस दफ्तर पहुंच सकती है। लेकिन अगर सीबीआई की टीम गिरफ्तारी के इरादे से आ रही है तो फिलहाल कांग्रेस दफ्तर में कामयाबी नहीं मिलेगी। और ये कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, कितनी उहापोह की स्थिति इस वक्त वहां पर बनी हुई है। बहुत भारी हुजूम वहां पर है, मीडिया का जमावड़ा वहां पर है। कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त वहां पर जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। 3 जायलम आते हैं पहले, जो कि 24-27 घंटे से लगातार चल रहे थे, अचानक से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आते हैं। 10 मिनट में अपनी जो बातें होती हैं वो पूरा लिखकर उसको लाए थे, लिखकर